Hello everyone and welcome back to Tanvish. First of all, thank you so much for tuning in. And in this video, we are going to talk about creativity. If you are a content creator, if you want to write something in your life, if you want to write blogs, article, content, if you want to shoot content, if you want to generate multiple ideas of being creative with respect to art, forms, writing, or anything else, then you should watch this video till the end because in this video I'm going to review this one, Steal Like an Artist. ये book मैंने recently buy किया and then I try to finish it within 2 days. बहुत simple है पढ़ने के लिए. लगता है कि ये बहुत बड़ा है but इसके अंदर के जो pages है, illustrations है, it's so amazing and इसमें छोटे छोटे chapters है that you can finish within minutes. Straightforward, छोटा सा message, एकदम की नोट और टू द हार्ट कॉन्वर्सेशन टाइप ये बुक है. सो दिस बुक इज टेलिंग यू 10 थिंग्स दैट nobody told you about being creative. Now let me share a story behind this book. Since I am a doctor, I am into Ayurveda, I have been struggling to establish myself in the whole competition. When I started my clinic, it was full lockdown. When I started my clinic on the very first day, it was full lockdown, and since then, it have been a struggle for me to establish क्योंकि मैं ऑफलाइन कहीं नेटवर्किंग के लिए नहीं जा सकती थी एंड मैं नागपुर में भी नहीं थी, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क नहीं थे एंड हैव टू फाइंड मल्टीपल आइडियाज़ ऑफ बीइंग क्रिएटिव ऑनलाइन, on social media, on YouTube, on stories, while connecting with people over social media, WhatsApp, communities and everything else, I have to be creative. 1.5 साल बाद I realized that COVID was a blessing for me in the form that मुझे ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए हेल्प मिली. मतलब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट प्रेजेंस ऑनलाइन. इट वॉज नॉट द अपॉर्चुनिटी बट द नेसेसिटी फॉर मी, क्योंकि उस समय मैं ऑफलाइन नहीं जा सकती थी. देन आई वेंट ऑनलाइन, आई स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट. तब इंस्टाग्राम और अब का इंस्टाग्राम इज़ टोटली डिफरेंट. सो मेनी चेंजेस एंड अपग्रेडेशंस हैपनिंग ओवर इंस्टाग्राम एंड ट्रेंड्स तो हर बार चेंज होते रहते हैं. बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अप विथ whatever resources I have. Tried experimenting with different things. I tried putting out a lot of different content, and then Instagram was a lead generation machine for me. I would not say कि हर कोई यही करता है और यही करना चाहिए. Everyone has the different perspective towards thing, but creating and presence online builds your authority. And today in the world of social media, you need to get into the mobile phones of audience. It will not just only build your credibility, authority, but also it will build your network, your community and trust among the people who are looking at you and looking up to you. So content has been a very core part of my career, and I believe that if you want to grow in life, you should be a lifelong learner. You have to constantly learn and upgrade yourself, and that's why I believe in reading kind of books. And अगर पढ़ी भी नहीं जाती ना, still I keep on collecting books. इसमें वो भी लिखा है, it's good to have a library. If you also don't read the books, you can read whenever you want to. So yeah, I like to collect such books, and I have finished this. But ये फिनिश करने के पीछे मेरा ये लॉजिक था दैट मैं एक आई वॉज लुकिंग फॉर समवन हु कैन गाइड मी इन क्रिएटिंग गुड आइडियाज़ अबाउट कॉन्टेंट और प्लान्स और एनीथिंग. देन आई वेंट टू अ कोच, अ गाइड, अ मेंटर, एंड ही सजेस्टेड मी दैट यू शुड रीड दिस बुक इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव. देन आई रेड दिस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे रिलेट हुई इस बुक से, क्योंकि बहुत बार होता एक स्ट्रेट पैटर्न है किसी भी चीज़ का दैट ये चीज़ें ऐसी ही होती है या ऐसी ही करना चाहिए. यू शुड नॉट मल्टीटास्क, यू शुड बी एट वन वर्क एट वन टाइम. सो एवरीवन हैज़ द डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ एंड स्टाइल्स ऑफ डूइंग वर्क. सो मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग था. बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक पैटर्न में बैठी है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, वो
मैं उस पैटर्न में नहीं बैठती बहुत बार. आई हैव अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट और creativity that I put into my work and I work with a very different attitude. हो सकता है इसलिए मुझे ये बुक अच्छा लगा. But I would like to share 10 lessons from the book. First chapter is Steal Like an Artist. The author says that creativity is about collecting ideas and transforming them into something new with your own style. Now, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नई प्रेजेंट करोगे. हर चीज़ हर किसी ने कहीं तो भी बोली हुई है एंड वही आप रिपीट करते हो. आइदर आप किसी से इंस्पायर होते हो या कहीं से सुनते हो, कहीं से आइडिया लेते हो एंड उसको प्रेजेंट करते हो. किसी भी आर्टिस्ट का वर्क एटलीस्ट कुछ चीज़ों से इंस्पायर हुआ होता है. लाइकवाइज देर आर मल्टीपल कंसेप्ट्स जो हमारे दिमाग में फीड होते रहते हैं फ्रॉम आवर लाइफ स्टाइल, रूटीन, सोशल मीडिया, बुक्स, फिल्म्स, सिनेमास, एडवर्टाइजमेंट एंड पीपल, परसेप्शंस, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस. उसी को हम इनकॉर्पोरेट करके आइडियाज़ जनरेट होते हैं. दैट्स वाई नथिंग इज़ न्यू. ओके, इन्होंने ये बोला है कि इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द आइडियाज़, एक स्वाइप फाइल बनाओ आपके पास. आपको जब भी कुछ नया दिखता है, आइडिया मिलती है या कंसेप्ट समझ में आता है, उसको नोट डाउन करके रखो. एंड जब भी आपको लगता है कि आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रहा है, वो आपकी स्वाइप फाइल ओपन करके देखो, आपके पास ढेर सारी आइडिया होने वाली. नंबर 2 इज़ डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर. बहुत बार ऐसा होता है दैट हम स्टार्ट ही नहीं करते चीज़ें. क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार मैं तो इस पोजीशन में हुई ही नहीं दैट मैं ये बोल सकता हूँ. मैं तो इतनी एक्सपर्ट डॉक्टर हुई ही नहीं कि मैं इस पे ओपिनियन दे सकती हूँ या दे सकता हूँ. राइट? सो वी ऑफन ट्राई टू लिमिट आवरसेल्फ एंड वी डू नॉट प्रेजेंट आवरसेल्फ इन द सोशल मीडिया और कॉन्टेंट. और ऐसी कोई चीज़ है, अगर मुझे बुक लिखना है तो मैं क्या करती हूँ, यार मैं तो इतनी बड़ी ऑथर हूँ नहीं कि मेरी बुक चलने वाली लिखे भी, क्यों ही लिखूँ मैं. प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है. या हम सोचते हैं कि मैं एक XYZ लेवल पहुँच जाऊँ, देन आई विल स्टार्ट राइटिंग, देन आई विल स्टार्ट पुटिंग अप कंटेंट, देन आई विल स्टार्ट डूइंग दिस दैट. राइट? ऐसा नहीं होता. You don't have to know your full identity to start something. You can just start and you will be something one day. If you start working now, you will reach somewhere. But if you just think that if I will reach there, I'll start creating content, that won't happen. So what you all have to do is just start putting up content. Sada, ghatiya, whatever you want, whatever type of content you make, just post it. Don't wait for something crazy to happen and then I will post. No, things won't happen the way you want them to happen, and that's why just start doing things. आप अगर आज स्टार्ट करोगे तो कल जाके आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए. आप उस दिन का वेट मत करो कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं करना शुरू करूँगा. नहीं होगा वैसे. राइट? सो हियर वी कम चैप्टर नंबर 3. राइट द बुक यू वांट टू रीड. नाउ इफ you want to find something that doesn't exist, write yourself, create yourself. अगर आपको डॉक्टर तनुजा क्रिएट करनी है, जो आपके ड्रीम्स में, आपके विजन बोर्ड में डॉक्टर तनुजा है, वो आपको क्रिएट करनी है, वो आप बाहर से नहीं ढूंढ सकते. आप इंस्पिरेशन ले सकते हो. इंस्पिरेशन लेके आप खुद को वो बनाओगे जो आपको बनना है. सो ही सेज दैट राइट द बुक दैट यू वांट टू रीड, डोंट वेट. सो आपके फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जिसके आपको सोल्यूशन नहीं मिलते. बैठो, ब्रेनस्टॉर्म करो, सोल्यूशन निकालो, ट्रायल एंड एरर करके देखो, गलतियों से सीखो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग. आपको कोई फरिश्ता के नहीं बताने वाला है कि ये तेरा प्रॉब्लम, ये इसका सोल्यूशन है तो ये ले, ये अब कर. नहीं, यू हैव टू क्रिएट बाय योर सेल्फ. सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू मेक इट हैपन, you have to write whatever you want to do. Just start. Chapter number 4, physical engagement enhances creativity. So always try to work with pen and paper. जितना कम आप लैपटॉप, मोबाइल यूज़ करोगे फॉर डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, उतनी बात अच्छी है. क्योंकि जब आप एक आधी चीज़ अपने लैपटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे टाइप करके रखते हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको पसंद नहीं आए, यू विल डिलीट इट. आप बैक स्पेस करके डिलीट करके उसको डिलीट कर दोगे, चेंज कर दोगे. बट व्हेन यू राइट थिंग्स ऑन पेन एंड पेपर, आपके ब्रेन्स में एक सर्टेन न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं. प्लस वो चीज़ आप डिलीट नहीं कर सकते, वो वहीं पे है. हो सकता है कल जाके आपने अपनी डायरी निकाली और आपको आपकी पुरानी चीज़ें देख के कुछ नया इनोवेशन, नया आइडिया आता है. हो सकता है,
I have been using multiple books and diaries to write down my all the ideas and dump the things. जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी, वो सर हमेशा कहते थे कि जितना सबसे ज़्यादा पेपर का कंजम्पशन है ना, ये तनुजा ही करती है, सबसे ज़्यादा पेड़ कटते हैं इसके वजह से, क्योंकि इतना पेपर वो यूज़ करते हैं. बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट, मुझे लिखने में मज़ा आता है, मुझे लिखती हूँ तभी मेरा दिमाग अच्छे से चलता है और वो क्रिएटिविटी निकलती है. इसलिए इन्होंने बताया कि अपने डेस्क को ना 2 पार्ट में डिवाइड करो. एक पार्ट में सिर्फ डिजिटल चीज़ें, एक पार्ट में सिर्फ डिजिटल चीज़ें और एक पार्ट में सारी फिजिकल चीज़ें, जहाँ पे आपका पेन, पेपर, स्केचबुक, स्केच पेन्स, ये सारी चीज़ें हो. जब आपको लगता है कि आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी शट हो गई है, शट डाउन योर डिजिटल स्पेस एंड मूव टू फिजिकल. देखो फिर क्या चमत्कार होता है. चैप्टर नंबर 5, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हैबीज आर इम्पॉर्टेंट. आपके हॉबीज़ आपकी क्रिएटिविटी को फ्यूल करते हैं. भले ही आपको ऐसा लगता है दैट ये चीज़ करने से मेरे काम को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, या मेरा काम अपग्रेड नहीं हो रहा है, या मुझे मदद नहीं हो रही है मेरे वर्क या प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करने में, फिर भी वो काम आपको करना है. बी इट क्लीनिंग अप अ स्पेस, क्लीनिंग अप बाथरूम, गार्डनिंग, साइकिलिंग, राइटिंग, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज, बैडमिंटन, इट कैन बी एनीथिंग. आपको एक तो हॉबी रखना चाहिए जो आपको मदद करे अनफोल्ड करने में चीज़ें जो आपके दिमाग में पड़ी हुई है. वो कितना भी अंडररेटेड और अनरिलेटेड लगा आपके काम के साथ, फिर भी आपको वो करना है. दिस वॉज द चैप्टर 5 एंड मूविंग टू चैप्टर नंबर 6, द सीक्रेट. Do good work and share it with people. Create consistently and share consistently with people. If you create and keep it to yourself, you don't get feedback, you do not boost your confidence, you do not get enough courage to post the next one, and you do not build your portfolio. तो अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको खुद को नेटवर्क बढ़ाना है, आपको खुद को अपग्रेड करना है, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स की ज़रूरत है, आपको खुद को अगर एनहांस करना है ना, पॉलिश करना है, तो आपको कंसिस्टेंटली क्रिएट करना होगा और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना होगा कहीं पे. तो जाके लोगों को समझेगा कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, आप कैसे हो. और आज आपने एक चीज़ करी है, कल जाके आप वही चीज़ 10x, 100x, 1000 टाइम्स बेटर करने लगोगे. मैं जब मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो देखती हूँ ना, मैं तो ऐसे कान बंद करके बैठ जाती हूँ, यार मुझे नहीं देखना, ये मैं ही हूँ क्या, ऐसा. सो यू विल इवेंचुअली स्टार्ट गेटिंग बेटर एट द टास्क इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग इट. सो स्टार्ट डूइंग इन वॉट एवर फॉर्म, in whatever place, in whatever camera, whatever setup you have, but start doing it. Chapter number 7, geography is no longer a limitation. पहले के ज़माने में था, अब नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास सोशल मीडिया है. तो if you want to be creative, you have to join, you have to कनेक्ट विथ मल्टीपल कम्युनिटीज़ जहाँ पे आपको क्रिएटिव लोग मिले, आपको अलग अलग माइंडसेट के लोग मिले, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग मिले, जहाँ पे आपकी थॉट्स के एक्सचेंज हो सकता है. सो आपको इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल, वाइडली एक्सेसिबल, यू कैन यूज़ द इंटरनेट. एंड इसलिए उन्होंने कहा जियोग्राफी इज़ नो लॉन्गर लिमिटेशन. यू कैन एंगेज, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, कोलैबोरेट, आस्क फीडबैक, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स विद द कम्युनिटीज़ ऑनलाइन. करेक्ट. सो chapter number 8, be nice. You have to be nice because world is a small town. क्योंकि if you are a kind and generous, then you will go a long way. If you are not, karma will be back. So be nice. And chapter number 9 is be boring. It is the only way to get your work done, because if you have structure and a discipline, it will create a foundation for your creativity. If you are not disciplined with your work, if you are not in a routine where you are not able to figure out what to do, when to do, how to do, कुछ नहीं होने वाला. Just start building a routine. कितना भी बोर हो जाए, until and unless you perform your task and your to-do list, keep on repeating the same routine. बोर हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. When you get bored, you get success. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कंटेंट बनाना है, आपको कुछ ब्लॉग लिखना है, आपको अगर बुक लिखना है, तो दिन में आपको जो भी रूटीन है उसमें से एक 30 मिनट का स्लॉट आप डेडिकेट कर दो आपके बुक राइटिंग के लिए. भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा है अभी लिखने के लिए, बट स्टार्ट स्क्रैचिंग समथिंग. आपको आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. brainstorm with the ideas, experiment with the thing, and then you will start getting better at creating good content, good ideas or good writing. And that's how
you get the task done. If you do this continuously, daily, for a long duration of time, you might finish the book, right? You might write a book itself, correct? So be boring. That is the only way to get success, I must say. And then chapter 10, creativity is a subtraction. When you focus on what is essential and eliminate distractions, then the creativity happens. So if you want to be creative, focus on what is important to you, what is important to get this work done, what is important to make yourself better, and eliminate every possible thing which will take you away from making less creative, less productive. You want to relate this with a book writing or a content piece, then देखो, see that, oh, मैंने ये बनाया है, what can be the better, how can I make this better, इसमें से मुझे क्या डिलीट करना चाहिए, इसमें और मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ that it will make the piece better. So constantly you have to ask yourself, review your content, eliminate the unnecessary things, and make it even better. It was all about the 10 chapters, but the moral of the story is, if you want to build creativity, if you want to build a lot of creative चीज़ें in your life, then you have to build the habit. Creativity is not a अचानक से हो जाने वाली चीज़. Creativity is a habit. You have to build discipline, you have to build adapt lessons, you have to just start small, but you have to start. Watch your creativity growing just like the J curve, but for that you have to start being creative, start putting up the content, start writing. If you are procrastinating each and every day and thinking that someday XYZ thing will happen and then I will start posting, then that is not going to happen anyways. So just start posting. See how people receive your energy, see how people react to your content, and then start experimenting with the things, start generating good ideas, reviewing your content, and then eliminating and focusing on the better ideas. So this is what about Steal Like an Artist. If you want to be creative, read Steal Like an Artist. The link to this book is in the description. You can just click the link, go to Amazon and buy the book. And by the way, comment below if you like the video. If you want to see more of such book reviews or self-help type videos, then comment me that what kind of video you would like to see from me, which are in this category, self-help apart from health, on personal development or business or branding or anything. If you want to see a different side of me apart from medical field or Ayurveda, then drop in the comment. Health वाली बातें बहुत होती रहती है हमेशा. I talk about weight gain, PCOD, XYZ and blah blah blah, but I want to be someone who can actually help you guys to grow. When you dedicate 15-20 minutes on my channel, I should give you some kind of value which will help you upgrade in your life. So drop in the comment what do you want to hear from me, okay? And see you in another video.